Good morning, children. Today we are going to study chapter number 8. The name of the lesson is Social Impact of ICT. ICT, as you must be knowing, stands for Information and Communication Technology. All right, means all those technology that helps us to send or receive information electronically is information and communication technology, mostly computers, internet, etc. And what are the social impact of these technologies? Social impact means what impact these facilities of internet, etc., all these technological development that we are having, like you are having this online communication, your WhatsApp, your social media network. So what all these things impact they are giving on the society. Introduction. Information and communications technology means your computers, your internet, your broadcasting, that includes TV and radio both, and telephony. So all these things collectively together they are known as information and communication technology. तो ICT में क्या क्या included है? Computers, internet, TV, radio and telephony. Has made our work more efficient, accurate and fast. Okay, because of these technologies we are able to now work more efficiently, accurately and in much more speed than we were used to do it earlier. Okay, we can send information very fast, we can search for the information that is accurate, we can get the results through computer that are accurate, and the chances of making a mistake are very less, because computers never make mistake, it is always the mistake of the person who is using the computer. But security of data has become a serious issue. Now, if we are getting all these benefits of information technology, there is some, you can say, drawback, or you can say an issue. And that issue is about the security of data. Means all the data that is stored, how to secure that and how to keep it safe. Few of the terms are secrecy or privacy. Information should be available to authorized persons. Example, methods like password protection should be used for data like bank details, credit card or ATM PIN number. Now first thing or first characteristic that information should have is it should be available to only authorized person. Means जो information जिस person के लिए है, जिसके मतलब के लिए है, उसी को एक्सेस होनी चाहिए, वही उस इंफॉर्मेशन को देख सकता हो और यूज कर सकता हो. जैसे फॉर एग्जांपल आपका ईमेल अकाउंट है, आपकी बैंक डिटेल्स है, आपके क्रेडिट कार्ड का और एटीएम कार्ड का पिन नंबर है, बैंक ट्रांजैक्शंस के लिए जो पासवर्ड है, वो सब आप ही तक सीमित होना चाहिए, कोई दूसरा पर्सन उसको एक्सेस नहीं कर सके. दैट इज सीक्रेसी और प्राइवेसी. Authentication means protection of data from unauthorized access and possible recovery if data is lost by taking backups regularly. Authentication means जब आप किसी डेटा को एक्सेस करते हैं तो पहले आपको ऑथेंटिकेट किया जाता है. ऑथेंटिकेट मीन्स ये मालूम किया जाता है कि आप जो उस डेटा को एक्सेस कर रहे हो, यू आर द ऑथराइज्ड पर्सन टू डू दैट. मीन्स आपके पास राइट्स हैं कि आप उस डेटा को एक्सेस कर सकते हो, उसको यूज कर सकते हो. दैट ऑथेंटिकेशन में बी डन in the form of textual password, or maybe nowadays a fingerprint or even face recognition technology. Integrity. User should get reliable information protected from human error, intentional tampering, software errors, virus and hackers. Data की integrity means किसी यूजर को जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही है वो प्रोटेक्ट होनी चाहिए. किससे? उसमें कोई एरर ना हो, उसमें जानबूझ के कोई बदलाव ना करे, उसमें कोई टेम्परिंग ना हो, उसमें कोई चेंज ना हो, सॉफ्टवेयर की कोई मिस्टेक्स नहीं हो, वायरस और हैकिंग की प्रॉब्लम. हैकिंग मीन्स अनऑथोराइज्ड यूजर who get access to the information to steal it or to make some changes in it. Okay, so इन सब जो ड्रॉबैक्स हैं और जो इश्यूज हैं, इनसे इंफॉर्मेशन को हमको प्रोटेक्ट करना होता है. दैट इज नोन एज इंटेग्रिटी ऑफ इंफॉर्मेशन. Now there is a term called plagiarism. Okay, plagiarism means someone is stealing your work or idea and presenting it as our own. Ideas are also considered a person's property like house, car, etc. Plagiarism का मतलब होता है जब कोई पर्सन किसी और के वर्क को अपना बनाकर पेश करता हो. मीन्स
you are taking somebody else's work, you are stealing it and you are presenting it to the world as your own work. आपने किसी और का काम लिया और उस वर्क पे अपना नाम लिखकर सबमिट कर दिया या वर्ल्ड को, दुनिया को ये कहा कि ये काम मैंने किया है. दैट इज रॉन्ग. सो दैट इज नोन एज अ क्राइम एंड दैट इज नोन एज प्लेगैरिज्म. बिकॉज आइडियाज आर ऑल्सो कंसिडर द पर्सन्स प्रॉपर्टी. आपके जो आइडियाज हैं, जो आपने सपोज कोई आर्टिकल लिखा, कोई स्टोरी लिखी, कोई पोएम लिखी, दैट आइडिया और दोज थॉट्स आर ऑल्सो योर प्रॉपर्टी. आज की डेट में प्रॉपर्टी का मतलब केवल घर, कार, ये जो आइटम्स होते हैं, जो थिंग्स होती हैं, वही प्रॉपर्टी नहीं होती हैं. इवन जो आपके थॉट्स हैं, आपके आइडियाज हैं, वो भी आपकी प्रॉपर्टी मानी जाती है. टू अवॉइड प्लेगैरिज्म, प्लेगैरिज्म को हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं? If you are getting information from any book or website, then we have to mention its source in our presentation. जब आप किसी वेबसाइट से या किसी बुक से कोई इंफॉर्मेशन को कहीं यूज करते हैं, आपने कोई बुक लिखी या आपने कोई प्रेजेंटेशन बनाया, तो आप उस प्रेजेंटेशन में नीचे या लास्ट में मेंशन कर सकते हैं कि ये इंफॉर्मेशन मैंने कहाँ से कलेक्ट करी है. उस बुक का नाम, ऑथर का नेम या वेबसाइट का नाम आप दे सकते हैं. तो उससे that is non considered as stealing. That is, you are using the information and you are also telling that you have not made this information. ये information या ये invention आपने नहीं बनाया है, आप इसको सिर्फ यूज कर रहे हैं और ये किसका है ये आप बता भी रहे हैं. So that is the way to avoid plagiarism. Avoid copying from a single source as this is considered plagiarism whether you mention source or not. किसी भी एक सोर्स से, जैसे आप कोई प्रेजेंटेशन बना रहे हैं तो उसको डिफरेंट सोर्सेज से आप इंफॉर्मेशन लीजिए, डिफरेंट बुक से या डिफरेंट वेबसाइट से. एक ही जगह से सारी इंफॉर्मेशन लेना हमको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि वो आप चाहे सोर्स बताएं चाहे नहीं बताएं, एक ही जगह से सारी इंफॉर्मेशन को कॉपी कर लेना इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज प्लेगैरिज्म. ऑलराइट. Now there are some rights, intellectual property rights. Intangible property created by individual or organization like logo, formula, written work, etc. by someone's creativity is considered as intellectual property, and the rights in the law to protect them are called intellectual property rights or IPR in short. Okay, intellectual property क्या होती है? जैसे हमने अभी डिस्कस किया, आपकी प्रॉपर्टी आपके आर्टिकल्स होते हैं. जैसे आपके पास कोई घर है, कार है, आपका सपोज कोई मोबाइल फोन है, आपका पेन है, वो आपकी प्रॉपर्टी है. वो तो होती है फिजिकल प्रॉपर्टी. लेकिन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? जैसे आपने अपने दिमाग से, आपने सोच के कोई लोगो डिजाइन किया है, कोई आपने आर्टिकल लिखा है, कोई पोएम, कोई पोएट्री लिखी है, कोई स्टोरी लिखी है, दैट इज कंसिडर्ड योर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी. वो भी आपकी प्रॉपर्टी है, वो आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, क्योंकि उसको आपने अपनी इंटेलिजेंस से, अपनी सोच से आपने उसको क्रिएट किया है. तो इस प्रॉपर्टी की सेफ्टी के लिए भी आपको लॉ द्वारा कुछ राइट्स प्रोवाइडेड हैं. जैसे पेटेंट. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स कौन से हैं? पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट. पेटेंट वो होता है जैसे आपने कोई इन्वेंशन किया, आप उसको पेटेंट करा लें. आपने कोई नया फॉर्मूला बनाया कि उसको आपकी परमिशन के बिना कोई दूसरा नहीं बना सकता या यूज कर सकता. इट प्रोवाइड्स एक्सक्लूसिव राइट्स टू द ओनर ऑफ न्यू आइडिया बिहाइंड द इन्वेंशन. रजिस्ट्रेशन इज रिक्वायर्ड. आपको एक एजेंसी है, इंटरनेशनल एजेंसी, वहां पे आपको अपने पेटेंट को रजिस्टर कराना होता है. कॉपीराइट. कॉपीराइट टर्म मोस्टली यूज होती है जब आप कोई बुक लिखते हैं. व्हेन यू पब्लिश अ बुक, प्रोटेक्शन टू पब्लिश इंफॉर्मेशन इन बुक. आपने कोई स्टोरी लिखी, वो किसी बुक में पब्लिश हुई, तो कोई दूसरा पर्सन उस स्टोरी आइडिया को आपकी परमिशन के बिना एज इट इज यूज नहीं कर सकता. ये जो राइट आपको मिलता है लॉ के द्वारा, इट इज नोन एज कॉपीराइट. एंड इट इज यू गेट इट ऑटोमेटिकली. जैसे ही आपकी वो, उसके लिए कहीं अप्लाई नहीं करना होता, जैसे ही आपकी कोई आर्टिकल या स्टोरी, आपका कोई रिटन वर्क कहीं पब्लिश होता है, उसका कॉपीराइट आपको ऑटोमेटिकली मिल जाता है. तो कोई भी पर्सन आपकी स्टोरी पे या आपके आइडिया पे, सपोज आपने कोई स्टोरी लिखी है, उस पर कोई सीरियल बनाना चाहता है या कोई मूवी बनाना चाहता है, तो उसके लिए उस पर्सन को आपसे परमिशन लेनी होगी. ट्रेडमार्क. अब ट्रेडमार्क क्या होता है? ये एक यूनिक साइन और लोगो है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का. जैसे आपने देखा होगा ये साइन अमेजोन का है, तो इस साइन को एज इट इज, इसकी नकल या इसको कॉपी कोई दूसरे ऑर्गेनाइजेशन या दूसरी कंपनी नहीं कर सकता. कोई अमेजोन नाम से दूसरी कंपनी नहीं खोल सकता और सेम टू सेम उसका लोगो या डिजाइन नहीं रख सकता. दैट इज नॉट अलाउड बाय द लॉ. ऑलराइट. सो दीज राइट्स आर नोन एज ट्रेडमार्क.
अब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में कुछ करियर्स हैं। करियर मीन्स आप जो भी बनना चाहते हैं अपनी लाइफ में, क्या करियर हम बना सकते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। जैसे डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है, उसकी जिम्मेदारी होती है प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ होल डेटाबेस इन एन ऑर्गेनाइजेशन। कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई संस्था है, उसमें सारा डेटाबेस, डेटाबेस मीन्स जो भी इंफॉर्मेशन उसमें स्टोर होगी वो कैसे स्टोर होगी, उसके लिए टेबल्स क्रिएट करना है, उसको राइट्स देना है कि कौन सा पर्सन कौन सी टेबल को या कौन सी डेटा को एक्सेस कर सकता है। सो दैट इज द वर्क ऑफ डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। हार्डवेयर इंजीनियर का काम होता है उस ऑर्गेनाइजेशन में जो हार्डवेयर है, मीन्स आपके कंप्यूटर हैं, आपके डिवाइसेस हैं, प्रिंटर्स, माउस, कीबोर्ड एक्सेट्रा, उन सब का रख रखाव करना, उनको मेंटेनिंग करना। अगर कोई नेसेसिटी है तो न्यू परचेज करना है, किसको कहाँ शिफ्ट करना है, दैट इज द वर्क ऑफ हार्डवेयर इंजीनियर। और एक होता है नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, मीन्स रेस्पॉन्सिबल प्लानिंग, डिजाइनिंग एंड मेंटेनिंग ऑर्गेनाइजेशंस लोकल एरिया नेटवर्क। कोई बिल्डिंग है, उसमें कंप्यूटर्स हैं, कोई सपोज 5 फ्लोर की बिल्डिंग है, हर फ्लोर पे आपका कंप्यूटर्स हैं, कोई ऑफिस है, तो उन सब कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट कैसे करना है, उसकी सारी प्लानिंग, उसकी डिजाइनिंग और उसका मेंटेनेंस, लोकल एरिया नेटवर्क बनाना है, कहाँ पे कौन सी साइट्स ओपन होंगी, कहाँ पे किसको क्या राइट्स मिलेंगे, प्रिंटर का कैसे एडमिनिस्ट्रेशन होगा। सो ऑल दीज आर द वर्क ऑफ नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर. So these are some of the important careers that are available in information technology. Now social media, as you must be knowing, Facebook, YouTube, Twitter, etc., they are the websites to provide, to make capable to take part in social networking, to share ideas and information. Okay, so you can make new friends on social media, you can share your ideas and information, you can exchange photographs, you can do online chatting, you can send messages, etc. क्या बेनिफिट्स हैं? आप इजीली नए फ्रेंड्स बना सकते हैं जो वर्ल्ड में कहीं भी लोकेटेड हो, किसी भी कंट्री में हो सकते हैं, किसी भी सिटी में हो सकते हैं। आप अपने आइडियाज इजीली शेयर कर सकते हैं, एक पर्सन से ही नहीं, कई पर्सन से एक साथ। आप एंड इट मेक्स इजी टू मेक मीट फ्रेंड्स एंड फैमिली लिविंग अब्रॉड। सपोज आपका कोई फ्रेंड या फैमिली किसी दूसरे कंट्री में रहता है, तो सोशल मीडिया के थ्रू आप लाइव कैम टू कैम मीट कर सकते हैं, चैटिंग कर सकते हैं, ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं और फोटोग्राफ्स शेयर कर सकते हैं। इसके कुछ डिसएडवांटेज हैं। डिसएडवांटेज लाइक children without parent guidance may explore wrong content and misguided by some elements. Suppose बच्चे अगर सोशल मीडिया और वेबसाइट्स को यूज करें विदाउट पेरेंट गाइडेंस, so they might be, there are some links that might take children to some sites that are not appropriate for children, means वो बच्चों के किसी यूज की नहीं है, उनका टाइम वेस्ट होगा, they will have eye strain also, and they will end up doing what they should not be doing on social media. They will end up wasting time, so this should be avoided. So children should use internet always through parent guidance. Too much time on computer or mobile puts a damaging impact. आप बहुत ज़्यादा टाइम देते हैं कंप्यूटर या मोबाइल पे, तो फिजिकली और साइकोलॉजिकली हेल्थ के लिए वो ठीक नहीं होता है। सो बैलेंस शुड बी मेंटेन। आपको एक टाइम निर्धारित करना चाहिए कि कितनी देर तक हमको मोबाइल और कंप्यूटर को यूज करना है, एंड यू शुड टेक रेस्ट ऑल्सो इन बिटवीन। जैसे 1 घंटा आपने कंप्यूटर या मोबाइल यूज कर लिया, देन यू कैन टेक रेस्ट फॉर सम टाइम, एंड देन अगेन लेटर you can see it or read your lessons or see the videos. All right, so I hope this chapter is clear. uh, you can see the video again if you have missed some point, and when I send you the book exercise and question answers, please do them in your notebook and send the pictures to me on time. Okay, thank you.